The idea is, if you're a rentee and you're following Rent Out, can I get you some discount coupon that can make your life a little easy and you're saving some money? That's the idea. Okay, so we have the rents which have gone up, the security deposit which has gone up, on top of which we had to pay brokerage. But has the quality of the products or the service come up with this? Second biggest problem is security deposit. Rakesh, don't you feel that rentals have really gone up? This story, I would say, is just what? 1 year kind of a story. The rentals have gone up by good 30%. Normally, अगर हम पीछे का ट्रेंड देखते हैं, seen rental going up, 5-6%. But suddenly, post COVID and post this particular situation, rentals have gone up by 30%. And what I'm not understanding is, यही एक particular industry है जहाँ पे supply बिल्कुल कम है and demand is so high. So the rentals के लिए ना जो बंदे उसको govern करते हैं, landlords or service providers, they actually make the industry move the way they want to. Otherwise, if you look at any other industry, you'll see it's a customer-driven industry. And find this particular industry is more of a landlord or a service provider industry. अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं रेंटल इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है. आई थिंक इसमें कस्टमर को ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. सो अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव जब मैं इसको कह रहा हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सो यू नीड टू आइदर गो बैक. अब रेंटल्स कहाँ पे बढ़े हुए हैं? CBDs लाइक कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट सेंटर. अगर आप गोल्फ कोर्स को और साइबर सिटी को कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट सेंटर समझते हो, तो अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, सो देन अगर मुझे अपने पॉकेट को रेंट के साथ एडजस्ट करना है तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा. सो यू कांट स्टिक डाउन टू कि मैं गोल्फ कोर्स रोड पे ही रहूँगा. दैट्स नॉट पॉसिबल. सो वी नीड टू फिगर आउट प्लेसेस इन 52. वहाँ पे रेंटल्स वुड बी 20% lesser. And that's how you'll be able to adjust within your budget. I think that's the only solution that I see as of now. The rents are going up, but the salaries are not keeping up at all. This is very true. Salaries are not going up. I think अब corporates को ये भी understand करना पड़ेगा कि let's take an example. Wherever you're working, so if you're working in Mumbai, corporate realize कि Bombay में properties are very expensive. At the same position, if you call up your colleagues in Mumbai, you'll realize that they are getting paid more. And the only reasoning that normally corporate gives you that rentals ज़्यादा हैं, but they're forgetting that Gurgaon के rentals भी तो बढ़ गए हैं. After this podcast, I'm pretty sure कि corporate is not going to change the salary structures. But then there has to be certain amount of realization कि यार अब with salaries that you're getting, rentals are going up by 30%. Your net in hand is not same as you've been getting last year. And don't you think, Avnish, second biggest problem is security deposit? Like कहीं कहीं तो 2 महीने के लिए मांगते हैं, कहीं 1 महीने के लिए, and it's a big amount. And we're not even sure whether we'll get it back or not. Yeah. यार देखो, अंडरस्टैंड करो, सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे पता है आपके पॉकेट को हिट करता है, पर लेता क्यों है वो? फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट जब आपको मिल रहा है, ठीक है ना, उसमें उस बंदे ने बेड लगाया है, टीवी लगाया है, गीजर लगाया है, आपने उसको एक बेसिक कमिटमेंट दी है कि मैं इतने टाइम तक वहाँ पे रहूँगा. अगर कुछ टूट फूट गया, सो वो कॉस्ट अपनी कवर कैसे करेगा? दैट्स द लॉजिक ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट. अब इसको आप ये नहीं बोल सकते उसको हटा दो. इट्स नॉट गोना हैपन. सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा. हाँ, ये इशू ऐसा नहीं है. देखो, 100 में से 100 बंदा खराब नहीं है. यू गेट टू हियर द स्टोरीज कि जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं करता है, या कम परसेंटेज में करता है, या अपने हिसाब से करता है जो उसको समझ में आता है. अब इसका सोल्यूशन लीगली बहुत टाइम लगता है, पर I think that's where I believe Rent Out could come in, can help you guys out. So, आज के दिन Rent Out has created a platform wherein people come and search. So, as an extended help, what I can do is I can extend my platform to people
जिनके साथ ये गलत हुआ है. सो अगर किसी को पैसे उसको सिक्योरिटी नहीं मिली है, सो व्हाट आई कैन डू इज दे कैन एक्चुअली शेयर दोज इंसिडेंट एंड वी कैन पोस्ट दोज इंसिडेंट ऑन आवर पेज. सो जो इस तरीके के कैरेक्टर है मार्केट में जो गलत काम करते हैं, सो द रेस्ट ऑफ द पीपल विल गेट टू नो कि यार this person is not good. So let's not, take it from this particular person or this particular landlord or this service provider. अब उसके कारण मैं पूरे इंडस्ट्री को टैग कर दूं कि सिक्योरिटी वापस नहीं आती है, तो दिस इज नॉट फेयर, बिकॉज अगर वो नहीं आती तो बहुत ज्यादा हो हल्ला होता है. एंड सिक्योरिटी का अपना एक लॉजिक है विच आई हैव टोल्ड यू. आई थिंक इसको ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं. इससे होगा क्या, देखो अगर लोकल बिजनेस मैनेज कर रहा है और उसको लगेगा यार कि जिसको मैं सिक्योरिटी वापस नहीं कर रहा हूँ और उसने मेरा ऐसे पोस्ट बना के रेंट आउट में डाल दिया है, उस बिल्डिंग में उसने ही मस्ट हैव स्पेंट अराउंड 1 crore or 50 lakhs. That is at stake. We're not trying to bully somebody. We're trying to make sure कि यार एक तो मेरी सैलरी 30-40-50 हज़ार रुपए है, मैंने तेरे पास 15,000 रुपए दिए हैं, क्योंकि मैं अगर दूसरी जगह जाऊंगा वही सिक्योरिटी तो मैं दूसरे को दूंगा. सो वी नॉट ट्राइंग टू किसी को पकड़ के हिलाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज यार मेरे पैसे मुझे वापस कर दो. और अगर आपकी इंटेंशन खराब है, सो आई नो अ प्लेस वेयर आई कैन पोस्ट माय वीडियो wherein the rest of the people who are looking for accommodations like rental accommodation, they know. So it's a caution, and rent out can play a role in actually helping bigger group of people, not to go to a particular person or to a service provider. I think that's all we could do at this point of time. It maintains transparency. Yeah. Okay, so we have the rents which have gone up, the security deposit which has gone up, on top of which we had to pay brokerage. But has the quality of the products or the service come up with this? You can't change the market dynamics. This has been like this. Rent, security, brokerages. I know brokerages सबको pinch करती है, but then this is a part of, this is a service industry, right? Else, what choice do you have? आप खुद जाके ढूंढोगे. I'm in Gurgaon. अगर मुझसे कोई पूछता है, Avnish, go and find an accommodation in Hyderabad, what am I supposed to do? I need a platform to search properties. Okay? अब सबको when you go out, तुमको लगता है 15 दिन की brokerage is too much. Renting market ना ऐसे ही चलती है. It's work like this only. So you got rent, you got security, you got brokerages. मुझे पता है ये जो brokerage है ये सबको pinch करता है. So आपके पास choice है, आप खुद जाके ढूंढ लो. But it's not that easy, right? You're looking for a place for 11 months, and house or home is like a dream product. Yeah, I imagine my place to be like this, and you would know 2 places or 3 places, but then अगर उस 2 में मिल जाता है तो fantastic, you don't need a broker. But if you want to have a bigger bouquet of things, then you need to have that service. Now, अब मैं ये brokerages कैसे हटाऊंगा? It's not that easy. But then what we have done as a rent out, and specifically in PG वाले product में, what we have done is we've uploaded all PGs, all landlord PGs all over Gurgaon and in Delhi. So what you can do is you can go to www.rentout.homes. You can put sector, your budget, you'll be able to see all PGs there. So the moment you put your name and phone number, the system would generate 2 WhatsApp. Now the landlord is going to have your number and you would have landlord's number. So there is no broker. Now we're able to do this only in the PG scenario. क्योंकि वहाँ पे हमको, it was easy for us. Now we're trying to work out the same scenario in 1 RK and 1 BHK. So it's going to be, it's going to be time taking things. So I'm not saying that इतनी जल्दी हो जाएगा. We are working on it. It might take 6 months, 1 year, but then of course with an intention to give you more services and to a certain extent help you out on saving your brokerage. That's the idea of rent out. But at the same time you have to understand, so this broker is providing you services.
I understand, थोड़ा pinch करता है, but then you need to have services, right? I think इसका यही solution that I see in the near future. Avnish, moving on to a new city and with the number of incidents increasing in India today, मतलब लड़कियों के लिए सेफ्टी एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी हो चुका है। और हम जब रेसिडेंशियल हाउसेज या सोसाइटीज़ में घर देखने जाते हैं तो हमें बैचलर्स को फ्लैट मिलता ही नहीं है। सो हाउ डू वी रिजॉल्व दिस? यार ये इश्यूज हर जगह एंड मुझे ना आई फाइंड दिस फनी। RWA जो सोसाइटीज की होती हैं उनको लगता है कि ये जो बैचलर्स ही हैं ये पूरी सोसाइटी को गिरा देंगे, यू नो। और सो व्हेन वी अप्रोच लैंडलॉर्ड कि ये फ्लैट देना है तो RWA उसको मना कर देते हैं। अब इस सिचुएशन को उल्टा करके देखते हैं। अब जब इन्हीं के बच्चे बैंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, देन दे रियलाइज कि यार अब उनके बच्चे बाहर हैं, अब उनके बच्चे सोसाइटी में नहीं है, अब देन दे फील इनसिक्योर। बट जब सिचुएशन उल्टी होती है, हाँ, दैट्स एब्सोल्युटली फनी सिचुएशंस। सो आई थिंक ये सोसाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा, सोसाइटी को ही समझना पड़ेगा जो सोसाइटी में रहते हैं। बट आई थिंक इफ यू लुक एट DLF फॉर दैट मैटर, मुझे नहीं लगता किसी भी हाई एंड सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है। वहां पे अगर इफ यू आर एबल टू पे दैट काइंड ऑफ अ रेंट, यू कैन एक्चुअली 3 boy 3 girl और a boy or a girl can stay. बट वहां पे रेंटर्स है pretty heavy. You know what we are talking is Golf Course Road में सोसाइटी के रेंटर्स स्टार्टिंग in Princeton would be about 50-55,000. So technically एक रूम पड़ गया तुमको 25,000 का। वहां सब लोग नहीं दे पाएंगे। सो जो लार्जर बिगर क्राउड है वो CGHS सोसाइटी में जाते हैं। और यहाँ पे वो CGHS सोसाइटी वाले क्या सोचते हैं मैं तो नहीं समझा पाया। पर हाँ, उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब आपके बच्चे दूसरी सिटी में जाते हैं और जब वो इनसिक्योर फील करते हैं एंड दे गिव यू फनी रीजंस लाइक म्यूजिक या पार्टी करेंगे और मुझे आई डोंट नो हाउ टू रिजॉल्व दिस। बट देन देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस आई थिंक व्हेन यू लुक एट PGs आर सिक्योर्ड, बायोमेट्रिक्स होते हैं, काफी PGs में गार्ड्स होते हैं। सो जो इंडिविजुअल बिल्डिंग्स हैं, आई थिंक दोज आर द ओनली प्लेसेस दैट आई सी जहाँ पे उतना अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। पर अगर मैं इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, द ओनली सोल्यूशन दैट आई सी इज ये किसी बॉय और गर्ल का इनसिक्योरिटी नहीं है। मैं इसको सिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखूंगा। आई थिंक योर क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक टू जिस बिल्डिंग में रह रहे हो उस बिल्डिंग में। सो आई थिंक मेरा इसमें एक ही सोल्यूशन है कि मैंने गुड़गांव में इतने इंसिडेंट देखे नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, और वो सारे के सारे गेटेड ही हैं। अगर आपको लगता है कि एनी स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट यू गेट टू हियर, आई थिंक अवॉइड दोज लोकेशंस। दैट्स द ओनली सोल्यूशन दैट आई सी। अदरवाइज गुड़गांव इज एन अप मार्केट। डोंट गो टू न्यू लोकेशंस, अपकमिंग लोकेशन, दैट्स ऑल आई कैन से। वही थोड़ा सा अनसेफ है। अदरवाइज गुड़गांव में I don't see this kind of a problem. Or odd ask ka to, I can't give you a solution to it. So Avnish, I'm 26-year-old. I'm looking for a 1 arcade and I have a budget of around 12 to 14,000. How do I even find, like which areas do I even look for? What should I avoid? Okay, now I get about 100 calls a day. So, और कई बार ना sectors, because you're coming to a new place and sectors के नाम भी algebra के समान लगते हैं. So first thing first, I make sure I'm listening to that person. So the first thing that I ask is, where is your office? My office is in sector 65. So which is Golf Course Road. So now what I'm doing is I'm going to help you with sectors which are adjoining 65 or any other location for that matter. So Tino is one situation, but that's how I look at it. So मेरे लिए priority क्या है कि you should not stay too far from your place. Rapido, Ola या Uber, I get you a place which is far. Then
any which ways, rent is an obligation, security, brokerage, and then I'm adding your travel time to it. ठीक है ना? And then you're not getting time for yourself. Working hours are never 9:30 to 6. बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है. It's the all our work is demanding, but then we end up by 7:30 and we are dead by that time. So I make sure कि you give me any. So the way I look at it is your office becomes the center point, and then I try and figure out first thing कि मैं आपको आपके बजट से within your budget what is that I can give it to you as close as your office. That's the first priority that I have, because I don't want to add more things. And then if I can get you a rapid metro route or a MG road route, fantastic. That's the first. That's how the way I look at it. So I'm trying to save time and money at the same time. And then the second question, of course, is the budget. अगर उस बजट में उसके पास नहीं आ रहा है, then I give you alternatives. Then I have to make you understand कि आपके बजट में what you're expecting it's not coming. Then you have to move into a different location where rentals are little less. एक और funny चीज है where people don't know about it. So गुड़गांव पहले क्या था? You know, farmlands था. ठीक है, you'll find Cyber City, then you'll find DLF Phase 3, right? Nathupur, that's how it is. So गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे small villages हैं. वो villages नहीं हैं, बस उसकी road सकरी हैं. And that's pretty, you know, it's a very beautiful case study if you realize. अगर आपका बजट 13,000 भी नहीं है और आपका बजट 5 या 6,000 है, क्योंकि आपकी सैलरी 12,000 है, तो आप गुड़गांव में ना फेज 3 में ना ये लोकेशंस में ले नहीं पाओगे. पर ऐसा कुछ नहीं है यार. व्हाट यू कैन डू इज जो छोटे छोटे चक्करपुर है, बादशाहपुर है, 61 में एक विलेज है, वहां पे यू कैन फाइंड अकोमोडेशन इन द रेंज ऑफ 5,000 to 6,000 or 7,000. पर वहां पे लोकल्स रहते हैं. सो इफ यू आर कंफर्टेबल, और ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी बिल्कुल खराब सी होती, दोस आर न्यू प्रॉपर्टीज, बट आपका बजट नहीं, यू कैन एक्चुअली गो देयर एंड यू नो फिगर आउट प्लेसेस देयर. बट अगर हाँ, पर एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं जैसे देखता हूँ 1 hour की भी स्टार्टिंग पॉइंट इज लाइक 10,000 एंड अबव. सो when two people are staying together, it comes out to be 5,000. That's the thing, and that's how the suggestion and discussion points start. So the first is of course the office location, and then rent, और आपका salary कितना है, and that's how then I listen to you and suggest you different options that are there in the market. So what we are doing is, let's imagine Raj लॉन्ड्री के लिए जाती है, एंड बट देन लॉन्ड्री वाला उसको एक पर्टिकुलर रेट पे देगा. बिकॉज अगर आप इंडिविजुअली जाते हो किसी चीज को लेने, कोई भी सर्विस लेने के लिए, तो वो आपको डिस्काउंट नहीं देता है. सो व्हाट वी हैव डन now, Rent Out is a family of 40,000 people, right? And about 3 million views coming every month. So I could go on Raj's behalf and actually can go and negotiate a deal for you. So what we are doing now is we're going out and talking to tiffin services. So let's assume DLF Phase 3. तो हमने DLF Phase 3 में पता लगाया how many tiffin services are there and get everything on our page. So all you have to do is go to the page or go to the website and see DLF Phase 3 में कितने tiffin services हैं. और इसमें कोई भी हमने ये नहीं किया है कि अपना कोई extra cost जोड़ दिए. This is very basic. So I want the food come straight to you and there is no added cost to it. Laundry. We're negotiating with laundry people to give me a discount of 30% so that you as an individual get 30% straight. So Sundays and Saturdays that you have, you should go enjoy. You should do something productive. I want you to go on a date. I want you to go watch a movie rather than you going and washing clothes. Gym. Ab gym mein these gym guys, what they're doing is they push you for an 11-month membership. So now what we're doing is we're negotiating and we're asking them, give me 3 months. यार मैं पूरी 12 महीने की फीस तो दे देता हूँ, जाता 3 महीने या 1 महीने हूँ. So can I do that? Can I save that money for you? That's what we are trying to negotiate. So
एक पर्टिकुलर सेक्टर में 3 से 4 जिम होते हैं, हम वो 3 से 4 जिम के पास जा रहे हैं आपके बिहाफ पे और आपके लिए वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं अ डिस्काउंटेड रेट। अगर उस जिम के अंदर जाते हो, यू नॉट बी एबल टू नेगोशिएट, बट सिंस दे नो अच्छा रेंट हाउस के फॉलोशिप पे एक बिजनेस प्रपोजल है, बन जाता है। सो आपको एक डिस्काउंटेड रेट में 3 मंथ का ट्रायल प्लान मिल गया विद अ डिस्काउंट, सो यू आर एबल टू टेस्ट इट। द फोर्थ इज ऑफ कोर्स कैफेज। यार मुझे पहले जब हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे, हमने लगा कैफे के लिए इतना ज़्यादा या नाइट क्लब्स इतना ज़्यादा क्या डिफरेंस करेंगे लाइफ में। पर जब हमने नॉर्मल रिसर्च की, वी रियलाइज दैट ऑल ऑफ यू आर एक्चुअली गोइंग टू द स्पेसेस 3 or 4 times in a week. So maybe you're not going, but at the same time, let's take an example. You go to a cafe in 65 sector or a Galleria and you see rent out के page पे followers for rent out are getting a discount to 25%, 30% or 15%. You're saving money. So the idea is, if you're a rentee and you're following rent out, can I get you some discount coupon that can make your life a little easy and you're saving some money? That's the idea. यार अमीश, बहुत लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। लाइक ओनर्स कम्युनिकेट नहीं करते हैं चीजें क्लियरली, अपना पैन कार्ड नहीं देना चाहते हैं रेंट क्लेम करने के लिए। तो लाइक व्हाट डू वी डू? यार मुझे पता है क्या लगता है इस चीज़ में, जब हम घर देखने जाते हैं ना, हम लोग इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं कि यार ये सामने वाला बंदा मुझे घर देगा ही नहीं। आप जब घर देखने जा रहे हो, आपको अपने पॉइंट्स बता, दिस इज योर एक्सपेक्टेशन। ये एक लॉन्ड्री लिस्ट है, राइट? वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, अगर आप उस लीज डीड में लिख देते हो तो लैंडलॉर्ड को यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है। अगर वो घर दे रहा है या सर्विस प्रोवाइडर आपको कुछ सर्विस दे रहा है तो उसके दिमाग में आ जाते ये मेरे टेनेंट की एक्सपेक्टेशन है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ, एवरीबडी पुट योर एक्सपेक्टेशन राइट, बिकॉज वही आपके 11 महीने में वो चीज़ें एक एक करके आपके सामने आते हैं। पर आपने फर्स्ट डे तो नहीं बताया और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सपेक्टेशन थी। अब लैंडलॉर्ड को आप 3 महीने के बाद जाते हो या ईयर एंड के पास जाते हो और बोलते हो कि वो पैन कार्ड दे दो, फर्स्ट डे आपने बोला नहीं, या लैंडलॉर्ड फर्स्ट डे नहीं मना करते, भाई मैं पैन कार्ड नहीं दूंगा, यू नो इट, ये घर मेरे लिए नहीं है, ठीक है यार। एसी 4 साल पुराना है, अब वो एसी नहीं चल रहा है, पहले दिन बोलो ना, सर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, इफ द एसी इज नॉट वर्किंग, प्लीज मेक श्योर आप सर्विस करके दिला रहे हो। सो यू शुड बी क्लियर डे 1, आपको अपने एक्सपेक्टेशन क्लियर करके रख दो, वो लीज डीड में आ जाएगा। अगर कुछ चीज लीज डीड में आ जाती है तो 2 पार्टीज हैं, आप डिफॉल्ट कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम है और लैंडलॉर्ड डिफॉल्ट कर रहा है तो लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम है। पर मैं देखता हूँ बैचलर्स को या रेंटीज को देखता हूँ, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बताते ही नहीं है। वो सोचते हैं यार मुझे घर मिल जाए, और वो इनसिक्योर होते कि शायद मुझे ये प्रॉपर्टी ना मिल जाए। ऑन द अदर हैंड वो लैंडलॉर्ड होता है कि यार ये बंदा मेरा घर क्यों नहीं रहा है, मेरा घर क्यों नहीं चढ़ रहा है। आप ये समझो, जब घर चढ़ेगा तभी लैंडलॉर्ड को पैसे मिलेंगे। सो यू शुड बी क्लियर फ्रॉम डे 1, आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है आप उसको लैंडलॉर्ड को सामने बता दो। वो नहीं समझ में आती लैंडलॉर्ड को, वो लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है, पर आप बताते नहीं हो और फिर उसी साइकिल में घूम जाते हो, यार थिंग्स आर नॉट वर्किंग, ये लैंडलॉर्ड मुझे ये सर्विस नहीं दे रहा है। जस्ट बी क्लियर फ्रॉम डे 1। ऐसे नहीं है आपको घर नहीं मिलेगा, और ऐसा है भी नहीं। बहुत अगर आप रेंट ठीक दे रहे हो तो मार्केट में आपके लिए काफ़ी घर है।